ओके। ऑडियो क्लियर। यस सर। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट अकॉर्डिंग टू लास्ट सेशन। हम लोग विंडोज सर्वर बैकअप पढ़ रहे थे। तो विंडोज सर्वर बैकअप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट वी हैव डन द फंडामेंटल ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about Windows Server Backup according to server role and features. Okay. So Windows Server Backup and Restore, right? So यहाँ पर ये होता है कि what is Windows Server or Windows Server Backup और what is Backup and Restore? Simple. तो सेम हम लोग लाइक बेसिक जो विंडोज सर्वर बैकअप है या फिर सर्वर फीचर्स के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से एक ही ऑप्शन होता है कि विंडोज सर्वर बैकअप अलाउ टू कॉन्फ़िगर बैकअप for our file folders, okay, or any other information which are available in our server. Okay, and same things we can configure our backup and restore we can configure for client operating system also. Okay. So WSB means Windows Server Backup. It is a default feature in Windows Server operating system. Okay, let me turn on my server, which is and I have new server right now क्योंकि पुराने वाले में बहुत सारा इशू था। बहुत लंबे समय से बहुत लैग हो चुका था ना। दिस इज माय न्यू सर्वर। ओके। एंड द सर्वर name is domain 1. Okay, this is the machine and the machine name and domain name is dc.com and computer name or machine name is domain 1. Okay, and the IP address is 192.168.1.0. So we are going to configure server backup for this machine. Okay, so as per theory Windows server backup configure backup for file and folders applications और एनी अदर थिंग्स। ओके, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फाइल फोल्डर है एप्लीकेशन है या डेटाबेस है किसी भी लाइक इंफॉर्मेशन का बैकअप यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगर हम लोग बैकअप की बात करें, लेट मी शो सर्वर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग एडवांस कुछ की कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो
For example, this is my server, okay? And I'm going to configure backup for this machine, okay? So how many types or how many components for Windows Server backup and feature, okay? Or how many components we need to configure, we need to understand the R for server, okay? So first of all, there are multiple component like first of all, we are going to discuss about backup types, okay? So there are different backup types. First one is file and folder backup, okay? Second thing, full server backup. And third point, incremental backup are like system state backup are not incremental, just scheduled backup. Then fourth point is incremental backup. And then fifth one is like system state backup, SYS system state backup. And then next one is bare metal backup. Okay. So these options for disaster management. Okay. Disaster management. Okay. On server, right? ये जो ऑप्शन है, दिस इज फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट, मीन्स वेन एवर देयर इज बिग प्रॉब्लम इन आर सर्वर वी कैन डू दीज ऑल थिंग्स और वी कैन मैनेज दीज ऑल थिंग्स, ओके? So we can protect our server, we can secure our server with the help of these all options using backup and restore feature, okay? So let me explain one by one. For example, file and folder backup. So according to file and folder backup, user can configure backup for uh, like any file and folder, any file and folder. लाइक किसी भी ड्राइव में अगर हमारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, किसी भी लोकेशन पर या हमारे किसी भी फोल्डर के अंदर कोई स्पेसिफिक फोल्डर है, तो मीन्स इट इज जस्ट लाइक कस्टम बैकअप। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करते हैं, अपने कस्टम बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है मीन्स उसको यूज़ करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक फाइल्स फोल्डर और वॉल्यूम, ओके? बट इन फुल सर्वर बैकअप we can copy all file and folder every time, okay? Important, but it's a large backup. फुल सर्वर बैकअप का मतलब क्या, एक लार्ज बैकअप होता है, एंड वी नीड टू कॉपी all file and folder every time, all file and folder every time, ओके? तो हमें अपने सर्वर का जितना भी फाइल एंड फोल्डर है सब कुछ का बैकअप बनाना पड़ता है। तो ये एक लार्ज बैकअप इन्वायरमेंट होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़े डेटा का बैकअप बनाना पड़ सकता है, ओके? देन स्केड्यूल बैकअप, इसमें क्या होता है कि हम पूरे सर्वर का अपना बैकअप बनाकर रख लेते हैं। स्केड्यूल बैकअप क्या होता है कि इन स्केड्यूल बैकअप या शेड्यूल्ड बैकअप, अ शेड्यूल्ड बैकअप रन्स ऑटोमेटिकली, शेड्यूल बैकअप runs this one
runs automatically. Okay, at set times. Okay, it may be daily or it may be weekly, etc. Okay. So there is no need to do any user intervention, right? Means without user interaction, particular scheduled backup configure automatically, okay, according to given time and डिटेल्स। ओके, जो भी हमारा टाइम और डिटेल्स दिया गया है, जो वो स्केड्यूल बैकअप क्या करेगा, ऑटोमेटिक एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्रिएट अ बैकअप। ओके, तो शेड्यूल बैकअप भी हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सर्वर ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर टाइम पर बैकअप लेता रहेगा। एंड मेक श्योर जब भी हम शेड्यूल बैकअप लेते हैं तो वी नीड टू केयर मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट इज द आइडल टाइम ऑफ आर सर्वर। ओके, सर्वर पर लोड कम है, आइडल टाइम कब होता है। ओके, वी नीड टू केयर दीज ऑल थिंग्स। मीन्स व्हेन आर सर्वर इज फ्री। ओके, means when server have less traffic, what is the idle time of server। ओके, या जो भी इन्वायरमेंट है, मीन्स मिडनाइट बेटर है या एवरी सैटरडे संडे बेटर है या जो कुछ भी है। सो एज पर गिवन आर प्रॉपर टाइम वी कैन कन्फिगर शेड्यूल बैकअप और स्केड्यूल बैकअप। देन इंक्रीमेंटल बैकअप, what is the meaning of incremental backup? Incremental backup means, uh, if for example, if you want to configure incremental backup for this server, and this is domain A, and for example, there is user and username is Adam, right? Or for example, there is database. There is a database with 500 files. 500 files. Okay. So for example, you configure the backup for this database, ओके, ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन, कहीं पर भी आपने इसको कॉन्फ़िगर किया। फॉर एग्जांपल टुडे इज मंडे। ओके, यूजर आते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, मल्टीपल्स ऑफ यूजर आर फॉर एग्जांपल एडम वर्क सम सॉरी डू सम टास्क and save the details or information or report in database. And for example, there is Monday, and according to Monday there is 500 files। okay, मंडे है, यूजर एडम अपना डेटा रखा डेटाबेस के अंदर, 500 डेटा है, 500 फाइल्स का डेटा है। एंड नेक्स्ट टाइम एडम स्टार्ट वर्किंग मींस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या होता है कि यूजर क्या करता है या एडम क्या करता है, काम करने स्टार्ट करता है एंड मेक सम चेंजेस इन 500 फाइल्स। मींस 500 प्लस 50 फाइल्स अकॉर्डिंग टू ट्यूसडे रिपोर्ट। ओके, तो ट्यूसडे के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर 50 प्लस फाइल्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो विदाउट इंक्रीमेंटल बैकअप सर्वर कन्फिगर सेम बैकअप अगेन विथ 550 फाइल्स। मीन्स टोटल ये क्या करेगा, ये तो बैकअप बनाया है। मीन्स फॉर एग्जांपल B1 बैकअप 1 हैव टोटल 500 फाइल्स। ओके, so server create another file with for example B2 without incremental, B2 with 550 files। okay, like that। so you can see, अगर यहाँ पर हमारा 500 फाइल्स का अगेन बैकअप बन रहा है तो एक तरीके का कॉपी पे कॉपी कॉपी पे कॉपी बनता जाएगा। वो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं या इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इसको फिक्स करने के लिए इंक्रीमेंटल बैकअप एक फीचर होता है, जस्ट हमें इनेबल करना होता है। तो वो क्या करेगा कि जो भी मंडे का डेटा था 500 का और एडिशनल जो ट्यूसडे का डेटा था 50 फाइल्स का, बस 50 फाइल्स को मॉडिफाई करेगा डेटाबेस वन के अंदर, और ओनली DB1 मान लिया डेटाबेस वन बैकअप बनाएगा, डेटाबेस बैकअप वन, एंड देर इज ओनली 550 फाइल्स। ओके,
फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को आता है, यूज़र काम करता है एंड वो 100 मोर फाइल्स को वहाँ पर स्टोर करता है। सो ओनली 100 फाइल्स बैकअप कॉन्फ़िगर बाय सर्वर, ओके, विल बी कॉन्फ़िगर्ड बाय सर्वर। क्या किया जाएगा? ओनली 100 फाइल्स का जो एडिशनल बैकअप है या एडिशनल डेटा है वो उसी के अंदर, समझ लो, मर्ज करता जाएगा या रखता जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें उस पुराने बैकअप को बार बार नहीं कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। पुराना बैकअप है, एडिशनल जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर बैकअप बनता जा रहा है, ओके। ये एक बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। एंड देर इज सिस्टम स्टेट बैकअप, ओके। So as per system state backup, it is important to know that system state backup for active directory, active directory, okay, or for system state मतलब जिस स्टेट में हमारा सिस्टम है उस स्टेट में वो बैकअप बना के रखेगा, ओके। जैसे कि हम लोग एक तरीके का स्क्रीनशॉट या बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट एंड एक आपका चेक पॉइंट और ऐसा कुछ बना के रखते हैं। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सिस्टम स्टेट को रिकवर कर लेते हैं। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेट बैकअप बैकअप सिस्टम फाइल्स, इट बैकअप सिस्टम फाइल, ओके, बैकअप रजिस्ट्री, बैकअप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, बैकअप बूट फाइल्स, ओके, फॉर रिकवरी। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, ये सिस्टम स्टेट बैकअप के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड व्हाट अबाउट बेयर मेटल? बेयर मेटल बैकअप एवरीथिंग, ओके, मींस बेयर मेटल बैकअप एवरीथिंग, बैकअप एवरीथिंग इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डेटा बेस, ओके। सब कुछ डेटाबेस और जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर चीज का एक बैकअप सर्वर के अंदर डेडिकेटेड इसका फीचर है, वो बनाया जाता है, ओके। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? सर बेयर मेटल एक बार रिपीट। हेलो। हाँ जी। जी सर, बेयर मेटल जो बैकअप समझा रहे थे ना, इसके बाद दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेयर मेटल में कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा मन सब कुछ का बैकअप बन जाता है। जैसा हमारा सिस्टम है, पूरा सिस्टम या पूरे सर्वर का बैकअप बन जाता है। तो इन सर ये केस ऑफ, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, तो सर ये बेयर मेटल बैकअप जो है, हाँ जी, ये मतलब अगर हमारा सिस्टम करप्ट होता है या कुछ होता है तो नई हार्ड डिस्क लगाकर हम इसको रिस्टोर करेंगे तो एज इट आ जाएगा सर्वर। हाँ बिल्कुल। सारा डेटा, सारा सॉफ्टवेयर, फाइल्स एज सब कुछ टोटल। जैसे हमारा सर्वर था, इसीलिए तो जब बड़ी डिसास्टर हो जाती है, बड़ी आपदा कुछ आ जाती है, मे बी फ्लड आ गया है ना, यस। सर्वर क्रैश हो गया, फायर आग लग गई, कुछ भी ऐसा हुआ, या सर्वर का मदरबोर्ड क्रैश हो गया, कुछ भी, मतलब एनी रीज़न कि हमारी जिस मशीन में पूरा सर्वर रन हो रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे में पूरी सर्विसेज रन हो रही थी, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी हो, डीएनएस हो, डीएचसीपी हो, डब्ल्यूडीएस हो, डब्ल्यूएसयूएस हो, है ना, जितना भी कुछ रन हो रहा था, वो हमारा सर्वर क्या हुआ, अचानक क्रैश हो गया। अब क्या होगा जब क्रैश हो जाएगा या डिसास्टर ऐसा हो जाएगा, तो पूरे इन्वायरमेंट का जो टास्क है वो रुक जाएगा। अगर हमारे पास एडिशनल सर्वर है तो ठीक है, चाइल्ड डोमेन है तो ठीक है, चलेगा। बट इन केस ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट वो भी सर्विसेज धीरे धीरे हमारे एडी और मतलब जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हैं, चाइल्ड डोमेन है, वो अपनी साइट के लिए मैनेज करेंगे। बट अगर हमारा रूट सर्वर चला जाता है, एफएसएमओ चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी पूरे इन्वायरमेंट में। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास बेयर मेटल है तो हम क्विकली एक नई मशीन में एक
मतलब कि नए स्टोरेज में हम अपने सर्वर को रख सकते हैं। मे भी हमारा जो जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो डिस्क ही करप्ट हो जाए। वैसा तो नहीं है कि जो 15 साल पहले डिस्क में ओएस डाला गया था वही आज भी चल रहा होगा किसी सर्वर का, है कि नहीं? रिप्लेस तो करना पड़ता होगा। सर अपडेट हो जाता है। हाँ, तो अपडेट हो जाता है, हम नई मशीन में उसको यूज़ कर सकते हैं, मशीन अपग्रेड करना पड़ सकता है, कुछ भी ऐसे। बट वन मोर थिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वेन एवर बट सर यू। ये जो है, ये क्या, हाँ। जो ये फुल सर्वर बैकअप है, इसमें भी हम्म। बेयर मेटल आएगा? हाँ, इसमें भी बेयर मेटल आएगा फुल सर्वर में। बट ये हमारा क्या करता है, कंप्लीट फुल सर्वर बैकअप का मतलब है इसमें कंप्लीट जो फाइल एंड इंफॉर्मेशन या फोल्डर है उसका बैकअप होता है, उसके बैकअप की बात कर रहे हैं। और इसमें ओएस, फाइल इंफॉर्मेशन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों के बैकअप की बात कर रहा है। ओके। फुल फुल सर्वर बैकअप में ओएस नहीं होता है? नहीं, फुल सर्वर बैकअप में हमारा आ जाएगा कॉपी फाइल एंड फोल्डर। ओके। ओके। फुल अच्छा, सर्वर बैकअप में हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है पूरे सर्वर का उसका बैकअप प्लान करना, है ना, कि ये बैकअप है, ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो सब का बैकअप बनाना। ओके। ओके। और इसमें बेयर मेटल में ओएस भी आएगा? हाँ, इसमें ओएस का मतलब एज इट इज़ हमारी पूरी मशीन बोल सकते हो। तो इसमें बेयर मेटल में फुल सर्वर बैकअप प्लस ओएस। हाँ। ओके। तो ओके। और ये जो हम लगाते हैं शेड्यूल बैकअप, हम्म। शेड्यूल बैकअप तो ये डेली जो करंट चल रहा है, तो इसमें ओएस का बैकअप नहीं आता है? इसमें देखो, शेड्यूल बैकअप में हम किसी भी चीज़ का बैकअप बना सकते हैं। ओके। ओके। या ऑल, शेड्यूल हम, या सारी चीजों का? हाँ, शेड्यूल में हम कुछ भी शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारे इतने बज के इतने मिनट पर इस डेट में, मतलब इस वीक, इस डे में हमारा ये बैकअप बनता रहे ऑटोमेटिक, उसमें हमें कुछ मैनुअली ना करना पड़े। ओके। तो बेयर मेटल भी ले सकते हैं इसमें? अभी कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके। क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। अभी पहले पॉइंट्स बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, फिर अभी किस में क्या ले सकते हैं अभी देखना लाइव। ओके। क्लियर है? क्लियर। तो बैकअप टाइप्स में हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने बेसिक फाइल फोल्डर या कस्टम बैकअप टाइप की कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिसमें हम कोई डेटा रख रहे हैं, उसका बैकअप बना रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। बट एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है, दिस इज ऑल अबाउट बैकअप टाइप्स। ओके। दिस इज माय डोमेन, डोमेन 1। ओके। एंड दिस, फॉर एग्जांपल, नॉट डोमेन 1, दिस इज dc1.com, राइट? ये हमारा डोमेन है। आईपी एड्रेस इज 192.168.1.10। ओके। ये हमारा सर्वर है। म्यूट कर लीजिए। डिफरेंशियल यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि, हेलो, हाँ हाँ, इसमें एक डिफरेंशियल बैकअप भी आता है ना? क्या चीज़? अनदर पार्ट डिफरेंशियल बैकअप। डिस्कस करते हैं। ओके सर। ये हमारा बैकअप टाइप, और ये क्लियर होने के बाद एक चीज़ हम और देख लें कि जो भी हम इंफॉर्मेशन का बैकअप यहाँ पर बना रहे हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा हो गया, एक मिनट, ये हमारा बैकअप टाइप। ओके। एंड आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड what about बैकअप डेस्टिनेशन ऑन सर्वर और फॉर सर्वर। तो बैकअप डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? अब सेम चीज़ आप क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो, क्लाइंट पर भी बैकअप डेस्टिनेशन सेम होते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन फॉर बैकअप डेस्टिनेशन इज लोकल ड्राइव। इधर यू कैन स्टोर योर बैकअप ऑन लोकल ड्राइव। ओके। लाइक लोकल ड्राइव मीन्स योर लोकल ड्राइव जिसमें आप काम कर रहे हो। अदरवाइज यू कैन स्टोर इन एक्सटर्नल ड्राइव, लोकल ड्राइव का ही वो पार्ट आ जाएगा। और सीडी, डीवीडी
या फिर एक्सटर्नल एसएसडी, किसी भी तरीके का। जो लोकल ड्राइव है मतलब कि हम अपने सिस्टम पर ही स्टोर कर रहे हैं, या एक एक तरीके से दो पार्ट में इसको रख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। लोकल ड्राइव मीन्स जो भी हमारे सिस्टम का लोकल ड्राइव है, या फिर रिमूवल रिमूवल ड्राइव। ओके, जिसमें हमारा आ जाएगा सीडी, डीवीडी, बीडी, और एक्सटर्नल एचडीडी, ईटीसी। ठीक है। एंड थर्ड वन इज नेटवर्क बैकअप, नेटवर्क शेयर पाथ। थर्ड हमारा हो सकता है कि कोई नेटवर्क शेयर पाथ हो, जैसे कि हमारा कोई अगर पाथ है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए डबल बैक स्लैश। ओके, और मेरा एक लोकेशन है 1.110 जिस पर कोई फोल्डर शेयर किया गया है, या कोई पाथ है जहाँ पर बैकअप के लिए शेयर किया गया है, बैकअप डेटाबेस। तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा डेटा जाकर सेव होता रहेगा। तो जो भी हम बैकअप प्लान कर रहे हैं, जो भी सारी इंफॉर्मेशन और साथ देख रहे हैं, वो हम यहाँ के लिए कॉन्फ़िगरेशन और प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट की बेनिफिट और बेनिफिट ऑफ बैकअप? क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आप कवर कर पा रहे हो? अभी मैं बेयर मेटल को या सिस्टम स्टेट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो सर ये जो है बैकअप का लोकेशन, हम जो क्लाइंट डोमेन में जुड़ा हुआ पीसी हमारा कोई सर्वर से, उसको भी हम्म। लोकेशन बना सकते हैं। किसी को भी नेटवर्क पाथ, नेटवर्क शेयर। अच्छा। नेटवर्क गुड। का मतलब होता है कि हमारे नेटवर्क में एक्स वाई जेड जो भी लोकेशन है वहां पर बैकअप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। ओके। आप वो कहीं पर भी हो, आपके टैबलेट में भी हो और आपने उसको उसके अंदर कुछ शेयर किया हुआ है, और वो नेटवर्क में पाथ एक्सेस हो रहा है, सो यू कैन ट्रांसफर योर बैकअप ऑन योर BYOD डिवाइस। ओके। ओके। So next thing, there are these all features protect, these options protect system and data। ये हमारे सिस्टम एंड डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड प्रोटेक्ट, या बोल सकते हैं कि इनेबल फुल सिस्टम रिकवरी यूजिंग BMR, बेयर मेटल लेवल रिकवरी। ओके, ये कंप्लीट उसको बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या बोल सकते हैं कि वी कैन रिकवर फाइल एंड फोल्डर इन डिसास्टर प्रॉब्लम। सो इफ एनी डिसास्टर or problem in machine, user or server admin can recover from backup। ठीक है। तो अगर हमारे सिस्टम पर, हमारे सर्वर पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी ऐसा आता है, तो बहुत आसानी से यूज़र अगर बैकअप प्लान करके रखा है तो वो यूज़ कर लेगा। ओके, डिसास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज़ कर लेगा। मैं यहाँ पर इस डायग्राम को ऐड कर देता हूँ, ये हेल्प करेगा आपको। एक चीज़ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने नॉर्मल फाइल एंड फोल्डर का बैकअप तो बनाया, बट व्हाट अबाउट सिस्टम स्टेट बैकअप? यू कैन कॉन्फ़िगर बैकअप फॉर योर server as per system state backup. What is the need and condition to configure system state backup? System state backup. What are the need and conditions or use cases in real environment to configure the system state backup? And it is very very important to remember, while configuration of these all things you need to contact your vendor. Okay,
if you want to upgrade your hardware, if you want to promote your server from one machine to another machine, और अगर लगता है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो यू नीड टू डिस्कस विथ वेंडर। ओके, बहुत सारे केसेस में वेंडर, फॉर एग्जांपल बैकअप हम एक और कंडीशन में प्लान करते हैं, समटाइम्स वी नीड टू अपग्रेड आवर हार्डवेयर, ओके, या मदरबोर्ड या कुछ भी ऐसा। तो हम क्या करते हैं, वेंडर से अपडेट मत लेते हैं और एज पर वेंडर वेंडर गाइडलाइन हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को अपग्रेड करते हैं एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बट उस कंडीशन में वेंडर क्या करता है, आपके सर्वर का एक शटडाउन टाइम रखता है और फिर आप और वेंडर के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। ये टॉप लेवल के जो टास्क होते हैं उसमें आ जाता है। एज एंट्री लेवल सर्वर एडमिन इन आर सर्वर इंजीनियर हैव नो परमिशन टू मैनेज दीज ऑल लैब्स, ओके। ये एंट्री लेवल या मतलब कि मान लिया आपने अभी जस्ट एंटर किया और ये सब है, तो ये टॉप एडमिन टीम द्वारा मैनेज किया जाने वाला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। यस। हम्म। तो ये भी ध्यान देंगे, और हमेशा एक वेंडर सपोर्ट होना चाहिए ताकि इन केस, हमेशा आप लोगों को पता भी होगा, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कि वेंडर वगैरह रहते हैं जिनसे हम अपने मशीन और हार्डवेयर और इन सारी चीज़ों का प्रॉपर क्या करते हैं, अपग्रेड अपडेट, इन सब कंडीशंस में एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें मिल पाता है ना। इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टू कॉन्टेक्ट विथ वेंडर, देन प्लान अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, ओके, जो भी हमारे रैक और सारी चीज़ों के लिए होते हैं। सो सिस्टम स्टेट बैकअप क्या करता है, या व्हाट आर द सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम स्टेट बैकअप? Basically, system state backup, SSB. Okay, it's a feature or role of Windows Server. Okay, ये क्या हमारा एक फीचर या बोल सकते हैं ये है, एंड प्रोवाइड स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ बैकअप, okay, that includes multiple information. Okay, so what type of information it include? First of all, it include active directory, database. Okay, if a domain controller available, अगर हमारे सर्वर पर डोमेन कंट्रोलर बना है तो ये एडी का डेटाबेस बनाकर रखेगा, है ना। ओके, so as per system state backup, whenever there is any problem in our active directory database or AD database, so we can easily fix through system state backup. For example, there is a user which name is Adam. Okay, there is a user on server with Adam name, और एडम क्या करता है, अपना काम करता है ये सारी चीजें, एंड आफ्टर सम टाइम या कुछ ऐसा वो होता है, या कभी भी रीजन, कोई भी ऐसा रीजन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, या बाय या बोल सकते हैं कि लाइक बाय मिस्टेक, ओके, यूजर यूजर डिलीटेड फ्रॉम सर्वर, डिलीटेड फ्रॉम सर्वर बाय मिस्टेक। हो सकता है कि गलती से या फिर जानबूझकर सर वो यूजर को डिलीट कर दिया गया, या कोई ऐसा रीजन बस कि मतलब कि आगे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दिया गया, और पता चलता है कि एक समय पर उसको ज़रूरत पड़ जाती है। सो इफ वी हैव system state backup, we can easily recover deleted user from server using system state backup.
ओके, तो हम बहुत आसानी से अपने एक्टिव डायरेक्टरी के डेटा को रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बैकअप को रिकवर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, ये हर तरीके का एडी का पूरा डेटाबेस आपको पता है कि जितना भी एडी का डेटाबेस है, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप्स, व्हाटएवर, सबको फिक्स और रिकवर करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो इट इज यूज टू मेंटेन और कैप्चर रजिस्ट्री बैकअप। ओके, रजिस्ट्री फाइल्स जो REG SVR करके हम लोग मैनेज करते हैं। एंड ऑल्सो इट मेंटेन सिस्टम फाइल्स, ओके, एंड बूट फाइल्स। It is all about system state backup. Okay, boot files. And also it includes certificate services. If there is any certificate related services is available or ADCS role installed in our server, so it maintain or it include that particular backup with system state backup. Okay, so if installed ADCS, then it include that particular backup. तो सर्टिफिकेट को भी ये क्या करता है, बैकअप लेता है। एंड नॉट ओनली सर्टिफिकेट, सिसवॉल फोल्डर बैकअप, ओके, which contains group policy and scripts, okay, and also it contains com plus विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जो भी हमारा ऐसा कुछ है WMI सेटिंग्स, अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो ये उसको भी कॉन्फ़िगर करके या मेंटेन करके रखता है। एंड यस, इफ देर इज एनी क्लस्टर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, इफ क्लस्टर अवेलेबल, अगर क्लस्टरिंग करी गई है फॉर लोड, फॉर रिडंडेंसी एंड ऑल अदर थिंग्स, इन सारी चीज़ों को लेकर, तो यस इट कन्फिगर और इंक्लूड द क्लस्टर लेवल बैकअप। ओके, क्लियर है? So this is the very, very important backup and restore process in our server. Okay. And whenever we need to recover Active Directory corruption, we need to configure the system state backup and we need to recover the corruption data through system state recovery. And if there is any, means we can restore server configuration after software and hardware failures. Okay. And we can configure uh, लाइक सर्वर रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, अगर सर्वर का रीइंस्टॉलेशन या कुछ ऐसा है तो बूट फाइल, सिस्टम फाइल, सब ये बैकअप बना के रखता है, सो इजली वी कैन रिपेयर दैट। ओके, सो अदर बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं या रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसमें हम सिस्टम स्टेट बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं या रियल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें। फॉर एग्जांपल, जैसे डोमेन कंट्रोलर प्रोटेक्शन, ये क्या होता है, हमारा एक तरीके का डोमेन कंट्रोलर का प्रोटेक्शन होता है। ओके, क्योंकि जब भी हम अपने सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को रन करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप के लिए हमारे पास सिस्टम स्टेट बैकअप होता है। ओनली सिस्टम स्टेट बैकअप कैन मेंटेन एंड कैन रिकवर, कैन प्रोटेक्ट योर एडी बैकअप और एडी लाइक सर्विसेज और सर्विस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है हमारे एडी के अंदर, सो इजिली वी कैन रिकवर थ्रू सिस्टम स्टेट बैकअप। अभी हम लोग यूजर वगैरह को डिलीट करके और रिकवर करके मैं दिखा भी दूंगा। ओके, सो बिफोर इंस्टॉलिंग मेजर अपडेट वी नीड टू कॉन्फ़िगर सिस्टम स्टेट बैकअप। इट इज, दिस इज द सेकेंड पार्ट, मीन्स डोमेन कंट्रोलर प्रोटेक्शन तो ये करता ही करता है, प्लस सेकेंड थिंग, we need to configure system state backup before installing major update और रोल्स। कोई भी रोल वगैरह आप आगे काम कर रहे हो ना, कुछ भी ऐसा, तो आप अपने
सिस्टम स्टेट बैकअप और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, सो बिफोर एडिंग न्यू डोमेन कंट्रोलर, कोई भी नया डोमेन कंट्रोलर ऐड करने से पहले यू कैन कॉन्फ़िगर सिस्टम स्टेट बैकअप। Before applying Windows update, you can configure state backup. Before upgradation, you can configure system state backup. Before configuration of DNS and DSCP or any other role and features, you can configure system state backup. It will protect your server ever and ever, right? And before configuration of certificate authority, it is important to configure the system state backup. So there are multiple like reasons. कॉन्फ़िगर करो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर मत करो आप, है ना। तो सिस्टम स्टेट बैकअप क्या करना होता है कि हमारा अगर सर्वर एडी मिलके तैयार हुआ, बिल्कुल प्रिपेयर हुआ, तो एट दैट टाइम वी नीड टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम स्टेट बैकअप। ओके, टू मेंटेन, ये जब भी हमारा लगे कि अब हमें सिस्टम स्टेट बैकअप को कॉन्फ़िगर करना है, सो वी कैन कॉन्फ़िगर सिस्टम स्टेट बैकअप। ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर जो होता है, सीए सर्वर होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी पीकेआई होती हैं, है ना। मान लिया कोई भी ऐसा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग करते हैं, सर्टिफिकेट की जो पीकेआई होती है और पूरे सर्टिफिकेट का डेटाबेस होता है, वो अगर कभी कोई मिस हो जाता है, कुछ भी उसके अंदर वो आती है, तो यस वी कैन मैनेज थ्रू सिस्टम स्टेट बैकअप, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के अंदर, सर्टिफिकेट सर्वर के अंदर, राइट। सो इन केस ऑफ क्रिटिकल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन लाइक डीएससीपी या अदर कुछ ऐसा है, तो यस हमें एक सिस्टम स्टेट बैकअप की प्लान करके रखना चाहिए ताकि हम री इंस्टॉल कर पाएँ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है बेयर मेटल। ओके, तो बेयर मेटल क्या रखता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन ले लें विच इज़ बेयर मेटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। द नेक्स्ट वन इज, अब इसके अंदर देख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों का होता है। ये बोल सकते हो कि कंप्लीट सर्वर बैकअप का पार्ट है, बट हाँ मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि व्हाट वी कैन मैनेज इन बेयर मेटल। So basically bare metal is a part of like complete backup of your entire Windows server. Okay, including operating system, file, folder, and everything. Okay, means it's a complete backup. Okay, it include operating system backup, system settings, and installed roles and features। जो भी हमारे इंस्टॉल्ड रोल एंड फीचर हैं, ये बूट फाइल्स को भी वो करता है। इट इंक्लूड सिस्टम स्टेट, सिस्टम का भी स्टेट बनाकर रखता है। इवन देन ऑल ड्राइव रिक्वायर्ड फॉर विंडोज टू रन, ऑल ड्राइव और ड्राइव्स रिक्वायर्ड फॉर विंडोज टू रन। ओके, तो means each and everything we can configure the backup through bare metal, okay, on server with complete server backup. Okay, it include operating system file, system state like registry information, active directory backup, com plus certificate authority and everything. Okay, critical volume, boot file, system partitions. Okay, एंड एडिशनल जो भी हमारे वॉल्यूम्स हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ इंक्लूडेड हैं, उसका भी ये बैकअप बना के रखता है।
क्लियर है? ओके। मान लिया कि हमारे सिस्टम पर कोई सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो हर चीज़ का ये बैकअप बनाकर रखने के लिए रेडी रहता है, या हम लोग इसके अंदर इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ओके। तो इसका हम लोग रिकवरी कब करते हैं और इसका यूज़ कब करते हैं? यूज़ केसेस की अगर हम लोग बात करें, इन रियल इन्वायरमेंट, व्हेन एंड व्हाई यू नीड टू यूज़ और यू नीड टू कॉन्फ़िगर बेयर मेटल। ओके। So in real time condition, there are multiple scenario or there are multiple problems in company which uh, bare metal helps to maintain or to troubleshoot. Okay. First of all, in case of hardware failure, in case of hardware failure, अगर हमारे सर्वर का हार्डवेयर फेल हो जाए, ओके, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, डिस्क फेल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू सर्वर को क्रैश होने की कंडीशन में रिकवर कर सकते हैं इन फ्यू मिनट। आपने 5 साल लगाया है सर्वर को कॉन्फ़िगर करने में, बट इफ यू हैव बेयर मेटल, सो यू कैन रिकवर योर कंप्लीट सर्वर इन 2 और 3 और मोर देन 5 मिनट्स। ओके, सर्वर विल लाइव, ये सारी चीजें। तो यस, इट सेव टाइम टू रिकन्फिगर कंप्लीट सर्वर। आपको 3-4 साल से सर्वर रनिंग है, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी ग्रुप पॉलिसी, बहुत कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है, वो सब दोबारा मैनेज करने में बहुत समय लगेगा। सो वी कैन कॉन्फ़िगर बेयर मेटल टू मेंटेन दिस, एंड ऑल्सो इट मेंटेन डिसास्टर रिकवरी। ओके। in case of server corruption, in case of malware attack, in case of ransomware attack, in case of failure, okay, so we can use system, सॉरी, बेयर मेटल बैकअप इन डिसास्टर प्रॉब्लम। बाढ़ आ गई, आग लग गई, जल गया, कुछ भी हुआ उस कंडीशन में। एंड मैंने बोला कि वी नीड टू कॉन्टेक्ट वेंडर। ओके, सो सम टाइम आर फॉर एवरी टाइम, बोल सकते हैं कि कभी कभी या फिर हमेशा, वी कैन कॉन्टेक्ट वेंडर फॉर सर्वर सिक्योरिटी। ओके। अगर मान लिया, अब वेंडर तो बैकअप और ये सब करेगा नहीं, बट आप वेंडर से इसके बैकअप एंड सारी चीज़ों का सोल्यूशन ले सकते हो, राइट? सो वेंडर गाइड अबाउट सर्वर माइग्रेशन, समटाइम्स server migration is required for infrastructure. Okay, server migration or hardware upgradation. फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम अपग्रेड करना है, कुछ भी ऐसा करना है, हार्डवेयर अपग्रेडेशन, तो एट दैट टाइम वी नीड टू do this. Our system state backup is important. Okay, it allow you to move a server installation to different hardware. Bare metal backup allows you to move a server installation on a different hardware. Okay, in case if you want to upgrade your server, upgrade your hardware, not server, so it is important to configure the bare metal. In case of any problem, you can easily recover your server, recover your database. Okay. And another thing, like with the help of a system state backup, we can recover or like repair role and feature based configuration. ओके। हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे मेजर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज होते हैं, उनके लिए भी हम अपने बेयर मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन टेक अ बेयर मेटल बैकअप अप्लाइंग फॉर मेजर अपडेट्स, upgrading Windows operating system, Windows Server operating system, or if you want to modify the role and features in your server related Active Directory, related DSCP, related DNS, or any other, you can do bare metal backup. ओके, क्योंकि सिस्टम स्टेट बैकअप में DSCP, DNS और ये सब नहीं आएगा, वो सेपरेट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी और जो अदर थिंग्स है उसके बारे में वो बैकअप बना रहा है। ओके,
तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच वी कैन मैनेज इन सर्वर बैकअप। मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ आपके इसके अंदर। सर इनके नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिएगा। इसीलिए तो ये ऐड कर रहा हूँ, है ना। अभी एडी शेयर कर देता एडीडीएस के टोटल स्टडी। हूँ। अभी मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ, इसमें पुराना और ये सब रखा हुआ है, ठीक है। ओके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फाइल फोल्डर बैकअप आप लोग जानते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम स्टेट बैकअप। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आ जाते हैं अपने सर्वर पर। दिस इज़ माय सर्वर। न्यू डीसी। मैं ये नीचे से सेविंग स्टेट देख रहा हूँ, 58% हुआ है। मैं इसका एक बैकअप रख लूँ। सर ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं नीचे। हेलो। कौन से वाले? ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये डोमेन 1 और ये 10149 हम्म। और ये ये बहुत पढ़ाया सारे इधर। जाएगा, इसके बाद के चैप्टर में है। अच्छा। ओके। 86%, 87% हो चुका है। ठीक है, आई थिंक अभी हो जाएगा विद इन मिनट। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो डोमेन है DC1 है, ठीक है। अभी इस पर हमारा विंडोज सर्वर बैकअप इंस्टॉल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रोल इंस्टॉल होता है, बट वी नीड टू इंस्टॉल द फीचर टू एक्टिवेट this particular function or Windows Server backup in our server. Okay, so we need to install the feature for Windows Server backup. So we can select dashboard, we can select add role and feature, and then next. Same way as per previous role installation, you can follow this step. Like I'm going to select the Windows Server backup from the feature option. So you can select Windows Server backup. Yeah, this one. And then next, restart the destination server. Yes.
इंस्टॉल दी फीचर। तो ये हमारा सिंपल इंस्टॉलेशन हो गया। एंड देन क्लोज। उसके बाद आपने सिंपल टूल्स में आना है, विंडोज सर्वर बैकअप। नाउ यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर दी बैकअप। तो फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, लोकल सर्वर बैकअप पर आएंगे और अपने इस सर्वर पर कुछ सेटिंग्स इनेबल कर लेते हैं और एक ड्राइव ऐड करते हैं, मतलब एक हार्ड डिस्क जिसके अंदर मैं बैकअप लेने वाला हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर और ऐड अप्रॉक्स 40 GB। ओके and okay, the main drive is 35 GB and additional drive is 40 GB with space. Okay, so I'm going to configure the partition for newly added drive. So सिंपल पार्टीशन मैंने क्रिएट कर दिया। 39.98 GB का ये कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर सम बैकअप is like database 1 and database नेटवर्क, ऐसा मैंने ले लिया। एंड दिस इज माय नेटवर्क बैकअप। ओके, ये हमारा क्या है, एक तरीके का नेटवर्क बैकअप के लिए मैं इस फोल्डर को क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। दिस इज फॉर नेटवर्क बैकअप। ये हमारे नेटवर्क में किसी भी मशीन पर हो सकता है। एंड वाइल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क बैकअप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अप्लाई द परमिशन विथ फुल परमिशन। ओके, so full permission done. Now you can close and yes, and database 1 is for local backup. Okay, तो मैं अब इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करूँगा और विंडोज सर्वर बैकअप में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड बैकअप वंस। हियर you can configure schedule backup. Okay, and in performance you can see there is a custom backup option where you can configure full backup, either you can configure incremental backup. इंक्रीमेंटल बैकअप इज ऑल्सो द डिफरेंशियल बैकअप, कोई पूछ रहा था। ये सर ये मैं हमारा पूछ रहा क्या था। है, हाँ ये वही जी बैकअप है डिफरेंशियल बैकअप, कि जो भी हमारे डिफरेंस होते हैं ना अपडेट के बाद, तो बस जी। उन्हीं का ये क्या करता है, एक तरीके का बैकअप बनाता है। ओके, ओके सर, ओके। हाँ तो इसमें यूज़र को बार बार इंटरेक्ट नहीं करना होता है, स्केड्यूल बैकअप लगा के ये चीज़ इनेबल कर दो और वो चीज़ अपडेट हो जाता है। बट अब वो आई थिंक किसी और टर्म में बोला जाता है या पता नहीं, बट यहाँ पर सर्वर के अकॉर्डिंग ऐसे ही है, तो इंक्रीमेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैकअप स्केड्यूल इनेबल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड फुल सर्वर बैकअप और कस्टम सर्वर बैकअप। ओके, देखो फुल सर्वर बैकअप हमारा जब नेक्स्ट करते हैं तो हम स्केड्यूल कर पाएंगे पूरे अपने सर्वर का बैकअप, और मोर देन वंस, या एक बार में आ, एक दिन में एक ही बार या उससे ज़्यादा, जो भी बैकअप आपको प्लान करना है वो टाइम दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे। और बैकअप टू अ हार्ड डिस्क दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर बैकअप, कहाँ रखना है बैकअप, बैकअप डेस्टिनेशन टाइप, तो बैकअप टू वॉल्यूम एंड बैकअप टू नेटवर्क लोकेशन। तो कोई वॉल्यूम है, कोई नेटवर्क है, या बैकअप टू अ हार्ड ड्राइव दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर बैकअप, कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव है या कोई पर्टिकुलर बैकअप है।
जो सॉरी वॉल्यूम है या कोई आपका नेटवर्क पाथ है, कोई भी ले लो आप, नेटवर्क पाथ आप यहाँ से सेलेक्ट करो, ओके करो। तो आप डबल बैक स्लैश, और जो भी आपका डेटा शेयर है जिस भी लोकेशन पर, आप वहाँ पर अपना क्या कर सकते हो, डेटाबेस बैकअप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, बट ये नेटवर्क बैकअप हो जाएगा। इधर यू कैन कन्फिगर बैकअप इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि मैं यहाँ पर 40 GB का एक नया वॉल्यूम बनाया हूँ। और एक और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बैकअप डेडिकेटेड ड्राइव, तो यहाँ पर शो अवेलेबल डिस्क, तो कुछ भी ऐसा यहाँ पर वो नहीं है, बट हाँ हम लोग 40 GB का एक डिस्क अवेलेबल करके डेडिकेटेड बैकअप के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और नेक्स्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये सिमिलर टाइप का रहा हमारा, जो कि बैकअप वॉल्यूम और डेडिकेटेड ड्राइव। तो डेडिकेटेड ड्राइव ये बैकअप के लिए ही मान लिया, ले लिया गया, ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो ये रहा हमारा स्केड्यूल बैकअप। और इन केस अगर मैं यहाँ पर लाइक मैं फुल सर्वर बैकअप हटाकर कस्टम बैकअप लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और मैं किसी एक ऑप्शन का बैकअप लेना चाहता हूँ, जैसे कि या किसी एक फाइल फोल्डर का, कि यूज़र का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका जो डेस्कटॉप है, इस पर जो जो है उसका मुझे बैकअप दे दो। ठीक है, तो ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, वंस अ डे, डेली 9 PM पर, या फिर आप कर दो 3 AM। 3 AM ये एक परफेक्ट टाइम होता है, 3 बजे रात में लगभग में, इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो बेटर टाइम है। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर हम एक बैकअप वॉल्यूम लेते हैं जो कि हमारा 40 GB का है, और इसके अंदर हम इसका बैकअप स्केड्यूल कर देते हैं, डन। तो वो जो भी टाइम है, इस डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, वो बैकअप हमारा क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको क्लोज करता हूँ, टूल्स में आते हैं, विंडोज सर्वर बैकअप, इंक्रीमेंटल आप अपने सी ड्राइव, EFI और किसी का भी इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो। रेस्ट और भी जैसे बैकअप आपके अपडेट होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा एक स्केड्यूल बैकअप है। अब मैं, अगर ये जो भी हमारा बैकअप है, मैं अगर अपने बैकअप को चेक करना चाहूँ, ये भी हमारे सर्वर पर ऑप्शन है। वैसे तो हम यहाँ पर आकर ये चीज़ चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई बैकअप, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप ऑलरेडी बना हुआ है, तो मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या इसको स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉप करते हैं और फिनिश करके स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा जो कस्टम सॉरी स्केड्यूल बैकअप था वो हट गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा बैकअप के लिए इस लोकेशन दिया गया था, कोई डेटा नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से सिस्टम स्टेट बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकअप वंस ऑप्शन। सो डिफरेंट ऑप्शन लेना है, देन नेक्स्ट करना है, और यहाँ से आप कस्टम लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐड में आएंगे और सिस्टम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। वाइल सेलेक्टिंग सिस्टम स्टेट, इट इंक्लूड ओनली सिस्टम स्टेट बैकअप, बट वाइल सेलेक्टिंग बेयर मेटल यू कैन सी इट इंक्लूड एवरीथिंग। और बेयर मेटल में कंप्लीट सर्वर बैकअप यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी इंक्लूड करना है, कर सकते हो, कोई भी अदर ड्राइव और ये सारी चीज़ें हैं। फुल सर्वर के भी अलावा क्या करता है, ये जितने एक्सटर्नल और चीज़ें हैं उनका भी एक बैकअप बनाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करा देता है। But I'm going to configure system state backup only. So you can use system state. But before configuration of system state backup, I'm going to configure some database for Active Directory, user and computer. Okay. I'm going to configure some username or users. Okay. For example, there is a user and the username is Adam. Adam. Next, this is the login credential.
डन। पासवर्ड डू नॉट मैच, ये बन गया एडम। अब बैकअप लें तो बेटर है, ताकि हम बैकअप के बाद इसको डिलीट करेंगे और रिकवर करेंगे। तो टूल्स में आते हैं, आई थिंक अपडेट हो गया सर्वर, प्रॉपर अपडेट कर लिया करें यहाँ से डैशबोर्ड से। टूल्स में आते हैं, विंडोज सर्वर बैकअप, बैकअप वंस, कस्टम, ऐड आइटम, सिस्टम स्टेट बैकअप। ओके, नेक्स्ट। Either you can configure local or remote. You can select as per need. I'm going to select E drive. It is system state backup or done. So it will take approx 2 to 3 minutes or 2 to 5 minutes, 2 to 4 minutes. तो ये 2-4 मिनट जो भी समय लेता है वो लेगा, क्योंकि ये लगभग 4-5 GB, 4 to 5 GB, 4 to 8 GB, समथिंग 6 to 7 GB, या मे बी 8 to 9 GB का स्पेस बनाकर रखेगा ये। %42, 7.52 GB का ये बैकअप बना रहा है।
तो सर ये हमें जनरली कौन सा बैकअप लेकर रखना चाहिए? दोनों। और इंक्रीमेंटल, सिस्टम स्टेट, बेयर मेटल, फाइल फोल्डर सब रखना चाहिए। अलग अलग फोल्डर बना के उसमें सेव कर लेना चाहिए। हम्म। बाकी शेड्यूल तो चलते ही रहता है डेली। हम्म। क्योंकि अगर मान लिया कि फाइल फोल्डर का ओनली बैकअप आपको लेना है और वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्या करेंगे? यस। बेयर मेटल वाले से तो रिकवर नहीं करेंगे कि पूरा सर्वर रिकवर कर दिया। यस। तो अपने अपनी जगह हर तरीके का हमें कॉन्फ़िगर करके रख लेना है, जब ज़रूरत पड़े तो हम रिकवर करेंगे। एंड इतना ही नहीं है, सर्वर में जो स्टोरेज मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें रैड है, डिस्क मिररिंग है, पूल है, ये सब भी हमारे वही काम करते हैं। हमारा डेटा करप्ट नहीं होने पाता। डेटा तो हमारा सेफ है, बट सर्वर की बात जहाँ पर होती है, जिसमें ओएस रन हो रहा है, जिसकी सर्विसेज रन हो रही हैं, इनके सर्विसेज के डेटाबेस हैं, जो सी ड्राइव के अंदर होता है ना पूरा कुछ। यस सर। तो उसके लिए हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। स्टोरेज का तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट वो भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, राइट? यस सर। बोलोगे सर, आरओडीसी है ना अपना सिलेबस में? आरओडीसी का तो फीचर एक्सप्लेन किया गया था डीसी, और उस समय अगर बनवाना है तो भी मैंने बताया था कि आरओडीसी अगर जस्ट रीड ओनली के लिए किसी लोकेशन पर सेटअप करना है, तो जो आप एडीसी बनाते हो वहीं पर एक जस्ट ऑप्शन आता है चेक करने का, आरओडीसी बन जाएगा। आप एडीडीएस वाला चैप्टर देखना, उसमें जब पढ़ाया गया है या एडीसी बनवाया गया है तो उसमें प्रॉपर बताया गया है। वो जस्ट रीड ओनली सर्वर होता है कि हमें मान लिया कोई ऐसी साइट है जहाँ पर हमें ऐसा सर्वर नहीं सेटअप करना है जिसमें इतने क्रेडेंशियल्स हो कि यूज़र वहाँ पर कोई मिस यूज़ कर पाए या कुछ भी ऐसा, है ना। एक टेम्परेरी सर्वर या रीड ओनली के लिए, ताकि यूज़र की रिक्वेस्ट को बस रीड कर पाए। ओके। ओके। तो हम उस लोकेशन पर क्या करते हैं, एक आरओडीसी बना देते हैं। आरओडीसी बनाना बहुत बहुत मतलब, एडीसी बना लेते हो तो वहीं आरओडीसी है, एडीसी बनाना है या आरओडीसी वो पूछता है। तो एडीसी वाला आप चैप्टर देखना। अच्छा, ठीक है। बस एक चेक करना होता है सेम नेम से, और वो है, बट यही है कि उसके पास ओनली रीड की परमिशन रहती है, और एडीसी के पास रीड एंड राइट दोनों होता है। ओके, थैंक यू। सर इसमें रोल फीचर्स में एक ऑप्शन होता है नेटवर्क बैलेंसिंग का, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। तो सर फीचर वो तो बहुत सारे होते हैं, 50+ फीचर होते हैं। तो वो सर पढ़ाया जाएगा, वो उसमें क्या होता है? वो इसके बाद एमसीएससी ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें पढ़ाऊंगा। MCSC CCNA? सीसीएनए में नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, वो अलग तरीके से, उसमें मल्टीपल टाइप्स के लोड बैलेंसिंग होते हैं, चाहे एच एस अच्छा, आर पी ले लो, एफ MCSE। एच आर पी। हाँ, एफ एच आर पी ले लो, एच एस आर पी ले लो, जी एल बी पी ले लो आप, है ना, वी आर आर पी ले लो, उसमें ईथर चैनल ले लो, एल एस सी पी, पी ए जी पी, अलग अलग तरीके से होता है। आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, नेटवर्क जरूर पढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यस सर। ये तो मेरी भविष्यवाणी, आप लिख के ले लो। यस सर। तो ये पढ़ना तो सही बोल MCSA रहे के बाद MCSE भी है? हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो करो आप। तो MCSA से और MCSE में क्या एक्स्ट्रा है? MCSE में तो बैकअप प्रोग्रेस है बस, 99 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा 7 पॉइंट समथिंग जीबी का बैकअप बन चुका होगा, ये विंडोज सर्वर बैकअप। अब मैं एक काम करता हूँ कि रिकवर करता हूँ और यूज़र को डिलीट कर देता हूँ। तो यूज़र डिलीट करते हैं पहले, एडम को, राइट क्लिक, डिलीट,
ओके, हो गया, क्लियर है। ओके। उसके बाद बैकअप, सॉरी, रिकवर पर आएंगे। और इसी सर्वर पर बैकअप है, हाँ, आज की डेट का है। और सिस्टम स्टेट है, बट जैसे ही नेक्स्ट करेंगे एक एरर आएगी। ओरिजिनल लोकेशन पर या कहाँ पर रखना है, ओरिजिनल लोकेशन। बट ये कह रहा है कि दिस बैकअप कंटेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी, ये कह रहा है कि फिर रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी में आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपको सर्वर को रिपेयर मोड में लाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है, जब मैं एडी पढ़ा रहा था तो उस समय एक पासवर्ड बताया था, DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। और ये भी बताया था कि जब भी हम लोग DSRM रिकवरी या एक्टिव डायरेक्टरी की रिपेयर रिकवरी करते हैं तो हमें इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है ना? याद है किसी को? DSRM, डायरेक्टरी यस सर्विस। सर, यस सर। तो अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपने लॉगिन पासवर्ड को और यूज़र ने मतलब डोमेन पासवर्ड को सेम रखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसी से करो। अगर DSRM के समय आपने पासवर्ड दूसरा दिया था तो उसकी ज़रूरत अब यहाँ पर पड़ेगी। बट अब हम इसको रिपेयर मोड में कैसे लाएंगे? F8 की से हम सेफ बूट मोड ऑन करते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर लिखें MS कॉन्फ़िग और एंटर कर दें। बूट ऑप्शन में आए यहाँ पर और सेफ बूट मोड ऑन करके एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर कर लें। ओके। और भी देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वी कैन गो विथ एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर। अप्लाई एंड ओके एंड रीस्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन। अब आपको ये कहेगा कि भाई मैं एक्टिव डायरेक्टरी को डिसेबल कर चुका हूँ और मैं एज अ DC लॉगिन DC.com से लॉगिन नहीं होऊंगा। तो अदर में आकर मुझे अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा विथ राइट क्रेडेंशियल। और यहाँ पर मैं, अब मेरा सर्वर बिल्कुल लाइक लिमिटेड फीचर के साथ ऑन है, इसमें AD या कोई भी रोल काम नहीं करेगा। देखो, सेफ बूट मोड इसको बोलते हैं। टूल्स में आएंगे, विंडोज सर्वर बैकअप एंड ये, आप एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह ओपन करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, ब्लैंक है, कुछ नहीं है। तो रिपेयर मोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर विंडोज सर्वर बैकअप में रिकवर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है डिस्क अनअवेलेबल हो जाता है, तो हमें डिस्क को यहाँ पर क्या करना होगा, ऑनलाइन बस कर देना होगा, ताकि हमारा बैकअप यूज़ किया जा सके। ठीक है, सिस्टम स्टेट नेक्स्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसी लोकेशन पर जहाँ से डिलीट हुआ चाहिए मुझे, ओके करेंगे। ऑटोमेटिकली रिबूट सर्वर और रिकवर करके यस कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, यूज़र तो डिलीट हो ही चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एडम वापस मिल जाएगा और हमें सिस्टम को दोबारा से सेफ बूट मोड में ऑन करना पड़ेगा। तो सर ये अगर एक यूजर भी डिलीट हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क के लिए सर्वर कुछ देर के लिए ये बंद हो जाएगा, अगर हम रिकवर करेंगे तो? ये तो होना चाहिए, होगा। नहीं, एक यूज़र डिलीट हो जाने से, अच्छा, नहीं, अगर एक यूज़र को रिकवर करना है तो ये मेंटेनेंस चलेगा ना हमारे सर्वर का, तो AD वगैरह रहेगा ना।
येडी अच्छा, रहेगा यूजर का जो डेटा होगा वो डेटा भी इसके साथ मिल जाएगा ना उसका, तो अपने डेस्कटॉप वगैरह पे रखते हैं यूजर, क्लाइंट पीसी पे नहीं नहीं, कुछ नहीं डेटा जाएगा। नहीं। डेटा तो हमारा और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ना, वो रहेगा उसका। जैसे डेस्कटॉप पे जो यूजर रखते हैं ना डेटा अपना, डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा, वो डेटा तो उनके यूजर बेस पे रहता है ना, वो डिलीट तो होता है तो। अगर कोई हम इसको डेडिकेटेड फोल्डर दे रखे हैं तो फिर तो हमारा डेटा है ना। ओके, यस सर। तो डेटा एक अनदर पार्ट है, डेटा हमारा रहेगा। ये यूजर डायरेक्टरी डिलीट हो रहा है, ओके। ओके सर। जब हम यूज़र को डिलीट करते हैं और कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि यूज़र ओनली डिलीट हो या यूज़र भी डेटा, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यूज़र ओनली डिलीट होता है ना, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो या विंडोज़ हो या कोई भी हो, है ना। यस सर। जैसे लिनक्स में भी आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल रिमूव करते हो यूज़र डेल तो सिर्फ यूज़र डिलीट होता है ना, डेटाबेस रहता है हमारा, डायरेक्टरी रहता है उसका। और जब हम उसको फोर्सफुली डिलीट करते हैं तो फिर डायरेक्टरी और सारी चीज़ें डिलीट होती हैं, होम डायरेक्टरी भी उसका डिलीट हो जाता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता है। अच्छा, रिकवर 46% हो चुका है, 48%। तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा वन यूजर डिलीट हो गया, हमारा हाँ नेटवर्क हाँ। पूरा प्रॉपर काम कर रहा, अब हमें उस यूजर को रिकवर करना है, तो हमें सर्वर पर जो रिपेयरिंग हमें सेफ मोड में खोलना पड़ेगा, तो बाकी यूजर तो इतनी देर के लिए सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसके लिए आपको कुछ पढ़ाया गया है स्टार्टिंग में? एडीसी काम करेगा। हाँ, काम या करेगा ए, ना, एडिशनल डोमेन ए, कंट्रोलर ए, और डोमेन्स एडीसी हमारे होंगे। अगर सिंगल है तो एडीसी नहीं है, तब अब तब तो नहीं बंद, है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो यार? तब तो काम बंद ही बंद हो हो जाएंगे। जाएगा। अब खुद कंडीशन दे रहे हो और खुद पूछ रहे हो आपके, अगर नहीं है तो मतलब अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं मिली तो हाँ नहीं नहीं, मिली तो कभी नहीं कभी मिलेगा। कई और ऑप्शन हो कोई इसका अलग। नहीं, कहीं और कोई ऑप्शन नहीं आता, और कोई ऑप्शंस है तो स्टोरेज में हम, सॉरी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के साथ तो हम एफएसएमओ रोल ट्रांसफ़र करके किसी को रूट बना देंगे और इसमें जब तक चाहेंगे तब तक अपना काम करेंगे जो कुछ भी है। ओके। हमारे सर्वर के एब्सेंट होने पर जो सर्वर काम करता है आपको पढ़ाया गया है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, भूलिए मत, सारी चीज़ें याद करने वाला होता है। एक्टिव यस। डायरेक्टरी का सेशन यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, जाकर देखो आप अभी सेशन के बाद। तो ये हमारा रिकवर हो गया, सॉरी, सिस्टम स्टेट का रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बट हमें अपने सर्वर को सेफ बूट मोड से बाहर लाना पड़ेगा, ओके। और उसके लिए क्या करेंगे, अदर में आकर और यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करेंगे, विंडो आर एम एस कॉन्फ़िग, क्योंकि जब तक बाहर नहीं लाओगे ना नॉर्मल बूट मोड तब तक कुछ काम नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल बूट मोड। आज सीसीएनए का 2 बैच पढ़ाना है एक साथ।
तो अप्रॉक्स में कंप्लीट हो गया। मुझे लगा था आज कोई लैब नहीं हो पाएगा, थ्योरी ज़्यादा चल गया था, लंबा हो गया था। ओके डन। देख लेते हैं एडम वापस मिला या नहीं मिला। ठीक है, ये आ गया। तो सिस्टम स्टेट में इन्हीं सारी चीज़ों का वो होता है। कल हम लोग बेयर मेटल वाला कंप्लीट कर देंगे।